I am Ajit Kumar Rao, advocate at BC Road. I feel the youth is not at crossroad. He is in the center of the crossroad. Center of the crossroad. He is not looking to any of the four ways. He is just enjoying TV. TV, everything is pompous, everything is luxurious. He also is interested in only luxury life. He is only interested in luxurious life. He wants to become rich. He wants to see how he can make money. That is the only thing every youth is interested. So, and he is also goes through that, he is busy in looking into the TV for 5 to 6 hours per day. He is not having time to come to this type of meetings, this type of any lectures, anything. That is why I think this is not coming, this is not proper, this one is not focused. That is why I think one channel is required by this IPTA is what is doing here. IPTA type of this things must be, must be a channel. We are not finding time to come here. Let us, when we are sitting here and looking towards the TV, let us get something from the TV, how to do, focus our... What is your opinion about that? Should I answer first, then you can ask your question? Okay. Thank you. So, yeah, true. Your observation is right. Your observation is absolutely correct, that we are on the center of road. See, first of all, you have concern about our generation. We respect it. But tell me, if we are not ready to understand the situation, who will face it? Definitely we will face it. Let us face the situation. We want to face it. Why? Because in my speech, I have raised this point that the aspiration, those who are controlling our mind and our consciousness, it is not just mind. It is a kind of social situation. It is a kind of, you can say, the social morality. And I think social morality, what we accept in the society or what we practice in the society, for that social morality, just one section, whether it is youth or women or any age group, not just they are responsible for it. जैसे आपने कहा कि रिच बनना चाहता है, क्यों नहीं बनना चाहे? If you have two sons and one has a very good salary, very good package, he will receive proper respect in the family, and another is very moral person, very honest, he has a very good behavior, but he is not rich, he is not getting handsome salary, he will not receive proper respect in the society, proper respect in the family. So what he will run? अगर मान लीजिए कि हम अपने लेवल पे उसको फेस भी कर लें, झेल भी जाएं, what next generation will learn from that kind of social behavior? मान लीजिए कि मैं दो भाई हूँ और मेरा एक भाई जो है वो कुछ भी करता है, वो मतलब घूस लेता है ऑफिस में, उसके पास जो है एक बहुत लग्जरियस कार है, बहुत स्पेसियस जो है 2 BHK, then 3 BHK, then bungalow, then 1, then 2, then different cities. So everybody is praising him. And I am a simple teacher, every day going 10 to 5, teaching students, and I am happy with my salary. I am not doing any malpractices in my life. I am not getting proper respect in the family. So what my son and daughter will learn? They will tell me, क्या कर लिया जिंदगी भर? चाचा को देखिए, चाचा कितना पैसा कमा लिए हैं, चाचा बढ़िया गाड़ी खरीद करके लाए हैं. ये जो आप बार बार एक चीज के लिए यूथ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, उसके लिए यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है.
हमारे देश में जो मोरालिटी है, जिस मॉरलिटी को आज हम लोग मिस कर रहे हैं, वो मॉरलिटी तब कब का चला गया था। वो मॉरलिटी अगर होता तो मुझे आप बताइए, वो मॉरलिटी का अगर कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती तो वो मॉरल क्राइसिस सोसाइटी में क्रिएट ही नहीं होता। साइमल्टेनियसली आप देखिए कि सोसाइटी बदला कैसे है। आप अपने लोकेलिटी को देखिए। लोकेलिटी में पहले कोई प्रॉब्लम होता था तो लोग किसी एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान के पास जाते थे, हैं? उसको उस चीज़ के लिए कंसल्ट करते थे, उससे सजेशन लेते थे। देन सडनली गांव का जो चीफ होता है, ग्राम प्रधान, वो कोई अब टीचर नहीं बनता है, वो अब कोई ऐसा आदमी नहीं बनता है जो सोशल मूवमेंट में रहा हो, जो लोगों के लिए काम करता हो, जिसके पास जो सोशल वैल्यू को रिस्पेक्ट करता हो, जो सोशल मॉरलिटी को प्रैक्टिस करता हो, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो स्पेस कौन लिया? वो स्पेस लिया माफिया, वो स्पेस लिया कॉन्ट्रैक्टर, वो स्पेस लिया मर्डरर। लीडर कौन बन रहा है आप मुझे बताइए? जिसके पास इलेक्शन में खर्च करने के लिए 500 करोड़ नहीं है, जो 100 करोड़ 50 करोड़ खर्च नहीं कर सकता है, वो तो इलेक्शन ही नहीं जीत पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि यूथ पैसा लेकर के वोट दे दिया है। हम कहते हैं कि यूथ जब वोटर बना, जब वो सिटीजन बना, उससे पहले वो एक इंडिविजुअल था जो एक फैमिली में पैदा हुआ, जिसकी एक सोशल कंडीशनिंग हुई। और उस सोशल कंडीशनिंग में उसने क्या सीखा? उस सोशल कंडीशनिंग में उसने यही सीखा कि एनी हाउ इफ यू हैव मनी यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, यू कैन गेट सोशल रिस्पेक्ट, you can access health, you can access vehicle, you can access plane, you can access hospital, you can access everything, whatever you want to access you can access if you have money। तो मैं अगर यूथ हूँ तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं भी पैसा कमाऊँ और मैं भी हर चीज़ को एक्सेस करूँ? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि दिन भर जो है वो टीवी पे टाइम पास करता है, इस तरह की मीटिंग में नहीं आता है। इस तरह की मीटिंग के बारे में उसके पास पता है, उसको मालूम ही नहीं है कि इस तरह का कोई मीटिंग होता है। पूछिए क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं, लेकिन अगर हम ये दावा करते हैं कि हम साइंटिफिक हैं, लेट मी रिमाइंड यू, अगर ये हमारा दावा है कि हम साइंटिफिक हैं, हमारे पास जो है साइंस को आगे बढ़ाने का और साइंस को यूज करने का पहला अधिकार है, आपको आश्चर्य होगा इस देश में कौन सी पार्टी सबसे पहले वेबसाइट बनाई है? डू यू नो दैट? इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पे वेबसाइट बनाया है? एनीवन कैन आंसर मी, बताइए। बीजेपी। डू यू नो दैट? सबसे पहला वेबसाइट जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में बनाया उसका नाम है बीजेपी। और बीजेपी कहती क्या है? बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल जेनेसिस क्या है? पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है? वो ये नहीं कहती है कि सरकार नौकरी देगी, भगवान नौकरी देंगे। उसकी तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी इसी आधार पे है। they don't believe in materialistic philosophy, they believe in idealistic philosophy, but what they practice in their life very much materialistic philosophy, but what they propagate idealistic philosophy। इस कॉन्ट्राडिक्शन को तो हमको समझना पड़ेगा ना। जो सबसे ज़्यादा इरेशनल पार्टी है, सबसे ज़्यादा इलॉजिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक पार्टी है, वो सबसे ज़्यादा साइंस का इस्तेमाल कर रही है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस देश में सबसे ज़्यादा ट्विटर फॉलोवर किसका है? मोदी का। नरेंद्र मोदी का। किसका होना चाहिए? जो साइंस पे क्लेम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे क्लेम करते हैं, जिनका मानना है कि ह्यूमन सोसाइटी ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ये डेवलपमेंट करके दुनिया को ऐसा बनाया है। ये एक फिलॉसफी है जिसको हम में से ज़्यादा लोग मानते हैं जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, और जो ये मानते हैं कि नहीं सब भगवान का किया हुआ है या सब अल्लाह का दिया हुआ है, वो साइंटिफिक टूल को हमसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप किसी भी मैं कह रहा हूँ, किसी भी अनसाइंटिफिक पार्टी के प्रोग्राम में चले जाइए, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा साइंटिफिक टूल मिलेगा। हो सकता है कि मेरी आवाज़ पीछे नहीं पहुँच रही हो, लेकिन जब आप उसके प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ एलईडी टीवी लगा रहेगा, पीछे में एलईडी टीवी लगा रहेगा, हॉल के बाहर एलईडी टीवी लगा रहेगा। इसके अलावे जो प्रोपेगेंडा टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, यूट्यूब पे उसका प्रचार आएगा, टीवी पे उसका प्रचार आएगा, व्हाट्सएप पे वीडियो आएगा, टिकटॉक बना करके डाला जाएगा, इंस्टाग्राम पे आएगा। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आप कह रहे हैं कि एक चैनल होना चाहिए, तो कौन रोक लिया था बताइए? कोई रोक लिया था क्या? यूट्यूब पे चैनल बनाने में कुछ लगता है क्या? अपना जैसे आप ईमेल आईडी बना लेते हैं, यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं। और जब चैनल बन रहा था तब हमने चैनल क्यों नहीं खोला? अब तो हम चैनल बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट बेस्ड चैनल्स हैं वो चैनल तो बंद हो रहे हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने वाले चैनल कैसे चलेंगे? अब तो वो चीज़ भी पुराना पड़ गया है, अब हमको कोई नया चीज़ ढूंढना पड़ेगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग एल्स। अब ये भी पुराना पड़ गया है। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ एनडीटीवी। एनडीटीवी किसी कम्युनिस्ट पार्टी का तो चैनल नहीं है। एनडीटीवी जो है किसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार भी नहीं करती है। एनडीटीवी तो एक लिबरल चैनल है और जो डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है उसको उठाता है, लेकिन मार्केट का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि एनडीटीवी बंद होने के कगार पे है। अभी का न्यूज है, एनडीटीवी के जो मालिक हैं उनको मुंबई एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया गया था। ये जो सिचुएशन आज क्रिएट हुआ है, मैं ये मत सोचिए कि मैं आपके जनरेशन को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो हम फेस कर रहे हैं ये पिछले जनरेशन का दिया हुआ है। इस बात को हमको मानना चाहिए और ये ब्लेम गेम नहीं है। अगर हम इस बात को मान लेंगे, वंस वी विल एक्सेप्ट इट, वी विल स्टार्ट टू, हम लोग इसका कोशिश करने लगेंगे, वी विल ट्राई टू करेक्ट इट। और उसको करेक्ट करने में मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि फेसबुक से कोई क्रांति आ जाएगी और ट्विटर से कोई क्रांति आ जाएगी। आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। वाई? क्योंकि वो मीडियम भी अब एक लेवल पे जाकर के सेचुरेट कर गया है। उसका पूरा का पूरा जो एल्गोरिदम होता है वो एल्गोरिदम कंट्रोल किया जाता है। आप मान लीजिए कि आपके 5000 दोस्त हैं, इफ़ यू हैव 500 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक अकाउंट, उसमें से आपको कुछ सर्टेन लोगों का ही टाइमलाइन आपको दिखेगा, उसके अपडेट्स ही आपके टाइमलाइन पे आएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सजेशंस आएंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। अगर आप दिन में म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, सडनली यू विल रिसीव अ ईमेल फ्रॉम म्यूचुअल फंड, द कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड। इफ़ यू विल टॉक अबाउट शूज़, यू विल गेट द पॉपअप ऑन योर फेसबुक अकाउंट अबाउट द शूज़। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, कितने लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। एज ए प्रोग्रेसिव पर्सन, एज ए लिबरल पर्सन, एज ए लेफ्टिस्ट पर्सन, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रेक दी मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए हम एक्ट क्या कर रहे हैं? हमारे पास करने को काम क्या है? 4-5 इंजीनियर मिल करके लिनक्स बना करके माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की मोनोपोली को ब्रेक कर दिया। उस काम को आज कौन कर रहा है? और उस काम को करने वाला जो जनरेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम कितना पहुंच रहे हैं? आपको पता है आईआईटी में लेक्चर देने के लिए कौन जाता है? सदगुरु। यू मस्ट अवेयर अबाउट इट। आईआईएम में लेक्चर देने कौन जाता है? सदगुरु, रामदेव। ये सारा का सारा फील्ड जो है हमने छोड़ दिया है, पूरा का पूरा फील्ड छोड़ दिया। एक जनरेशन इस देश में जो लेफ्टिस्ट थे, प्रोग्रेसिव थे, सेकुलर थे, डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने काम किया। उसके एग्जाम्पल हैं कॉमरेड काकालैया। वो पूरा का पूरा जनरेशन काम किया। उसके बाद का एक जनरेशन आया जो सिर्फ भाषण दिया, उस फील्ड में जाकर के काम ही नहीं किया। मैं ये पूछता हूँ कि कोई अगर आईआईटी का प्रोफेसर है
ऑब्वियसली वो साइंटिफिक होगा, ऑब्वियसली जो है उसको मतलब होना चाहिए, वो लॉजिकल होगा, रैशनल होगा। लेकिन उसके भीतर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का सवाल है, जो अप्रोच का सवाल है, जैसे आइंस्टाइन सिर्फ साइंस नहीं थे, वो सोशल फिलोसोफर भी थे। इसीलिए आइंस्टाइन ने एक आर्टिकल लिखा था, वाई सोशलिज्म। ये बहुत फेमस आर्टिकल है आइंस्टाइन का, वाई सोशलिज्म उन्होंने आर्टिकल लिखा। इस तरीके का काम करने वाले कितने लोग आज हमारे पास बच गए हैं। डॉक्टर जो हैं, जो साइंस को प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीच में हमारा कितना अप्रोच बच गया है। जो साइंटिस्ट हैं, अब आप मुझे बताइए, मैं किसी कल्चर या ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नारियल फोड़ने से मंगलयान मंगल पे पहुँचेगा, तो नारियल तो हम 5000 साल से फोड़ रहे हैं, तो अभी तक मंगल पे क्यों नहीं पहुँचे थे। ये जो पूरा का पूरा लड़ाई है, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, और मैं आपको कहता हूँ कि हमने शुरू नहीं किया है, जब तक हम शुरू नहीं करेंगे नए तरीके से, नए टूल को एडॉप्ट करके, तब तक ये सिचुएशन हमारे बीच बना रहेगा। उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जो काम इस तरह की मीटिंग में नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस फैलाने का काम, साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, रैशनैलिटी, उसको स्प्रेड करने का काम इस देश के कॉमेडियन कर रहे हैं, कॉमेडियन। और हमारा जो यूथ है, हमारा यूथ के बीच हम भले नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उस मीडियम के माध्यम से उस जनरेशन को, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट में, सर्विस सेक्टर में काम करने वाला जो यंग जनरेशन है, जो इंजीनियर हैं, जो MBA हैं, जो मार्केटिंग की काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, उसके बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सो अगेन हम ये स्ट्रेस कर रहे हैं, हम उस पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी की ये ज़रूरत होती है, ये नीड होता है कि वो साइंटिफिक चीज़ों को एडॉप्ट करे। क्योंकि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होते हैं वो हमारी सोसाइटी, हमारे लाइफ को ईजी बनाने के लिए होता है। अगर उस मीडियम को हम एडॉप्ट नहीं करेंगे, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, उसको प्रोपगेट करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करके अनसाइंटिफिक टेम्पर को स्प्रेड किया जाएगा। मैंने मोबाइल जो है वो भाजपा बनाई है, भाजपा नहीं बनाई है ना, और भाजपा कभी मोबाइल बना भी नहीं सकती है, क्योंकि जो अनसाइंटिफिक फिलॉसफी है उससे तो मोबाइल नहीं बनेगा, उससे तो कैमरा नहीं बनेगा, उससे तो ये साउंड सिस्टम नहीं बनेगा, उससे तो इंजीनियरिंग डेवलप नहीं होगा, उससे तो ये लाइट नहीं बनेगा। ये तो साइंटिफिक फिलॉसफी से होता है। लेकिन साइंटिफिक टूल को यूज करते हुए कोई अनसाइंटिफिक हो सकता है, दंगाई हो सकता है, बलात्कारी हो सकता है, वुमनाइजर हो सकता है, ईव टीजिंग करने वाला हो सकता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करके हम साइंटिफिक टेम्पर को, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को पहुंचाने का काम करें। और उस नए मीडियम को अगर हम एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो यूथ सुनने के लिए तैयार है। अब हमको पसंद है क्रिकेट, और आप हमको जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी बताना शुरू कर देंगे। पहले क्रिकेट की बात करके हमसे दोस्ती कीजिए, हमारे साथ बैठिए, थोड़ा हमारी गर्लफ्रेंड का हालचाल लीजिए, थोड़ा हमारा विचार मोनोगमी के ऊपर जानिए, पोलोगमीन मोनोगमी के ऊपर हमारे विचार को सुनिए। हम जो है मैरिज इंस्टीट्यूशन को लेकर के क्या सोचते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, थोड़ा इन चीज़ों पे चर्चा कीजिए, फिर धीरे से हमको मार्क्सवाद ही समझा दीजिएगा। और मार्क्सवाद ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर आप हमको बताना शुरू कर देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खतरनाक नशा कोई होता है।